So the topic that I've been told to talk on is probably one of the most difficult things that one can imagine. Positivity in the time of a pandemic, meaning positivity and well-being. ऐसे time पे जब सब कुछ upside down है literally. A little bit about what I am and where I'm from and how I got into this profession. After finishing my MBBS, I was asked a very interesting question that MD किस subject में करनी है. Now, as the usual norm is, usually girls take up OBGYN, gynac, or dermat. But my interest was always in understanding human behavior. How is it that two different people react so differently to the same situation? And that's when I took up my MD in psychiatry. And after that, I also did another additional degree in psychiatry. I've been very fortunate to have worked in so many different cities and been exposed to so many different cultures. Delhi is obviously always home. However, now City of Joy, Kolkata is my permanent home. I've also worked with a different variety of organizations, government organizations in Mumbai, private setups in Delhi, and now I'm working with a corporate hospital, and I have my own venture called Mind Wellness. Now, in very simple terminology, हम किसी party में जब जाते हैं and somebody asks me, what do I do? Their first thought on hearing that I am a neuropsychiatrist is always, क्या आप पागलों की डॉक्टर हैं? To which I always react, नहीं मैं इंसानों की डॉक्टर हूँ, because ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पागलों की डॉक्टर की एक अलग कहीं पढ़ाई होती है. Another interesting thing is, हम जब भी parties में जाते हैं, if it's my husband and I, my husband is also a doctor, he is a spine surgeon. When people see him, they naturally walk towards him. In fact, so many people introduce him, ये मेरे डॉक्टर हैं, इन्होंने मेरे पे ऑपरेशन किया था, so they're very proud. Whereas when people see me in parties, they naturally run away from me because they're very scared that this doctor is the one that I went to and she knows my deepest, darkest secrets. So I deal with people, their mind, their mental and emotional health, their psychological health, their relationship issues. But most important, rather than just treating illnesses, I try to focus on people's well-being. And that's why I feel that mental health पे इतना stigma है, ना सिर्फ हमारे देश में, I would say worldwide. I would very happily refer you to who my skin doctor is or who my gynecologist is, but referring you to who my psychiatrist is a very different emotional ball game altogether. And because of this, I constantly believe that awareness is something that we should focus on, especially when it comes to mental health, to destigmatize it. I have been fortunate to speak at big universities like IIT, Kharagpur. I was invited by NIFT. Some of the key MNCs have invited me to talk about stress, to talk about positivity, to talk about mental health. And that just makes me as happy as treating or helping patients. I've also been fortunate to give back to the community, stress management for policemen, for even the hospital staff, for we even work with acid survivor victims. These have been very key, monumental in making me a better person today. Now, today's topic is so interesting that it got me thinking in so many different domains. मैं खुद को सोचने लगी that एक आम आदमी को जिंदगी में खुश और पॉजिटिव रहने के लिए क्या चाहिए? What do we need to stay happy and positive in our lives? Any guesses? I would love for you all to take a moment and think, what are the basic things that one needs to stay happy in life? And later, maybe we can even hear from you what you think is happiness. I can see some people are pouring in suggestions. But in my opinion, once upon a time, हमको सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए था. And that was enough to make us all happy. I would talk about a previous generation, a previous era. And then came this whole new wave of Kalyug, in which to stay happy, to stay positive, people needed roti, kapda, makan, and internet. Because internet ke bina na hum jud sakte the aur na zindagi chalti hai. So this is how things evolved. But आज के टाइम में जिंदा रहने के लिए I think we've moved further away, because आपके पास बिल्डिंग हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, बैंक बैलेंस हो सकता है, बंगला हो सकता है, मगर मास नहीं है तो लाइफ नहीं है. So I think the times have evolved so much over the years, and we've been fortunate as a generation to see
such a different thing going on in our entirety. I welcome you to the SARS-CoV-2 times. Unfortunately, these are not good times, and we meet under these circumstances. It's a pandemic, but I feel with every novel situation, there is some novelty to it that we should admit to. SARS-CoV-2 एक नोवल वायरस है जिसको हम बोलते हैं नोवल कोविड-19. ऐसे ही एक सिचुएशन जो है ये भी बहुत ही नोवल है. It's never heard of, never could we imagine that the whole world would be shut down the way it is. Never could we imagine the way that we have been responding to it, our government has been responding to it, the way we have been personally responding to it. In fact, इतना नोवल है that स्टॉक मार्केट इस वायरस के साथ उतार चढ़ाव दिखा रही है. उतने ही इंटरेस्टिंगली जितना ये वायरस के बारे में रोज हर घंटा न्यूज बदलती है, वैसे ही स्टॉक मार्केट भी ऊंच नीच दिखाती रहती है. We would have never imagined that flights would be banned. I mean, there will be no flights. It's such an occurrence which one would not imagine of. And petrol prices going in negative, it's just mind-boggling for everybody. इतनी नॉवल सिचुएशन है कि हम क्वारंटीन जैसे वर्ड सीख गए हैं, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज थे जो हमें कभी पता ही नहीं थे. फॉर दैट मैटर, एज अ डॉक्टर इवन वी वुड क्वारंटीन वेरी रेयर पीपल. सो इट्स अ होल न्यू बॉल गेम, नॉट ओनली फॉर यू ऑल बट फॉर मी एज अ डॉक्टर, फॉर माय फैमिली विच इज फुल ऑफ डॉक्टर्स एज वेल. इतना कलयुग आ गया है that we have to call back Ramayan to save us, that प्रभु हमें बचाइए, because we really don't have a way out of this and we really need some positivity in the form of Ramayan जो हम अपने दादी दादा के साथ देखते थे and तब के जमाने की. When this leading platform asked me that how to be positive during the pandemic in these stressful times, I initially thought to myself that it's a very interesting take, that is it even possible to be positive during these stressful times? Is it possible to find a silver lining? I mean, it's hard, but is it possible? Now, Manish ji, I would like you to ask the people the set of questions that I've given you. These are simple opinion polls. मैं चाहती हूँ 2 मिनट के लिए आप प्लीज थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करिए. पोल आपके पेज पे आ गया होगा. पहला सवाल है, डू यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी एन ऑप्टिमिस्टिक और अ पॉजिटिव पर्सन? नेक्स्ट सवाल है, इज द कोरोना वायरस पैंडेमिक मेनली अ पॉजिटिव सिचुएशन और अ नेगेटिव सिचुएशन अकॉर्डिंग टू यू? अगला सवाल है, आर यू स्ट्रेस्ड ओवर दिस प्रेजेंट सिचुएशन? और आखिरी सवाल है, व्हाट आर यू मोस्ट स्ट्रेस्ड अबाउट इन द प्रेजेंट डे? क्या ये काम से रिलेटेड है, क्या ये हेल्थ पैंडेमिक से रिलेटेड है, क्या ये घर से रिलेटेड है, या बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है? प्लीज टेक आउट सम टाइम टू आंसर दीज. So you see, as a psychiatrist, मेरा काम आपके माइंड के अंदर झांकने का है, एंड ये एक तरीका है जिससे मैं आपके माइंड में थोड़ा झांकना चाहती हूँ. So Manish ji will share the answers with me in a cumulative of maximum लोगों ने क्या opinion poll दिया, that do they think that this is that they are a positive person or do they feel that they're mostly in a negative frame of mind, and बाकी तीनों question का एक जवाब वो मेरे को थोड़ी देर में बताएंगे. We'll move on further until then. Ravi ji, can we move on? Or do you think is that enough time? Yeah. Go ahead. Perfect. Go ahead. We have sufficient time. Yes. Great. So कोरोना वायरस नेगेटिव सिचुएशन, कोरोना वायरस का पैंडेमिक जो है ये नेगेटिव सिचुएशन है कि पॉजिटिव सिचुएशन? दैट गॉट मी थिंकिंग दैट ऑब्वियसली ये नेगेटिव सिचुएशन है. मतलब ये बहुत ही स्टूपिड सवाल था, सॉरी, बट कुछ ही लोग इस नेगेटिव में पॉजिटिव खोज सकते हैं. माय फेवरेट पर्सन राइट नाउ ट्रेंडिंग इज the very respectable president of United States. He seems to tickle my funny bone every day, so I've been following him very religiously. फिर मैंने सोचा अगर नेगेटिव है तो surely as a consultant who works with positivity, spreading positivity, मेरा काम है कुछ पॉजिटिव ढूंढना.
तो चलिए थोड़ा सा साथ में पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई इफ वी कैन. Has the virus taught anything positive to the world? Is there anything positive which comes to your mind? Let's take maybe 10 seconds and think about the first positive thing which comes to our mind, which the virus may have done to us. Can we have maybe one of the panelists say unke mind mein kya positive aaya hai? Let's make it a little interactive. So we'll start with Mr. Pasi, our Sure. chairman. Sure. Sir, can we hear you? ठीक है रावत जी, मुझे ही पकड़ो पहले आप. आप सर लीडर है सर, आप बताएं. नहीं, मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, ये कोरोना जैसे ये आया उससे पहले के अगर हम 4 महीने पहले देखें तो हमारी लाइफ कैसी थी. लगे रहते थे, सुबह निकलते थे 8 बजे घर से तो रात को 11-12 बजे, देन अनदर पार्टी, वहां जाना है, यहाँ जाना है. और कई बार हम खुद ही सोचते थे कि हम शायद नेचर से, भगवान से थोड़ा दूर हो गए. बिल्कुल. मगर कोरोना वायरस जब से आया है तो लोगों को एक डिसिप्लिन आ तो गया है. भाई घर में चलो सुबह 9 बजे उठो, 8 बजे उठो, डू सम योगा एंड डू सम गार्डनिंग. वाओ. वे से जो वे ऑफ वर्क है आदमी का, या जो स्ट्रेस रहती थी गाड़ी में बैठना ड्राइवर के साथ, या खुद गाड़ी चलानी भीड़ भड़ाके के अंदर, तो ये चीजें तो चेंज लाई हैं. और मोर ओवर पहले हम आसमान नहीं देख पाते, तारे नहीं देख पाते थे, मगर आज हम उनको महसूस फील कर सकते हैं कि चांद भी दिखता है और तारे भी दिखते हैं रात को, और एयर भी फ्रेश है. हो सकता है कि अभी आपको थोड़े दिन और पहाड़ों पे जाने की जरूरत ना पड़े जब तक ये सारा पोल्यूशन का माहौल दोबारा नहीं आ जाता. बिल्कुल बिल्कुल. तो लाइफ तो चेंज है. और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि ये लाइफ का एक बदलाव जो कुदरत की तरफ से, भगवान की तरफ से आया है, और ये थोड़ा चलेगा. आप ये चलना चाहिए, हमें चलाना चाहिए कि आदमी हमें उसी वे में रहने की अब आदत डाल लेनी चाहिए. ये आप समझो रूटीन हो गया आपका, और इसी में ही काम करना पड़ेगा, इसी में ही जीना पड़ेगा, इसी में ही हमें रहना पड़ेगा. चाहे मास्क लगा के आप बाहर जाएं, इट इज कंपल्सरी. नहीं जाओगे तो हो सकता है कि फिर आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, 14 और 28. और स्पेशली इन आवर एज तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो ये चीजें जो भी हुआ है उसके लिए जो मैं सोचता हूँ मेरी तरफ से है कि एक अच्छी चीज है. एक सोचने का वक्त मिला है हमें पे, और रहने का वक्त और जीने का वक्त जो मिला है, उसके साथ हमें चलना पड़ेगा. हमें चलना भी चाहिए. हमने अपने टाइम के अंदर डे एंड नाइट बहुत काम किए हैं. जब एक पैसे नहीं जेब में होते थे तब भी हम दुखी थे. हम कहते थे चलो एक मौका मिला है तो हम काम करें. कई हमारे ऐसे भाई हैं जिन्होंने 18 घंटे काम किया है, 23 घंटे काम किया है, ट्रेन्स में किया है, प्लेन्स में किया है, जो भी है. मगर मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ. ठीक है, ये टाइम है, निकल जाएगा और अच्छा टाइम भी आएगा, कोई बात नहीं. आप ऐसे यही अच्छा टाइम है. अभी तो आपने इतनी खूबी से डिस्क्राइब किया कि ये अच्छा टाइम है. अपना टाइम आ गया है. वी डोंट हैव टू थिंक दैट फ्यूचर में आएगा. इट्स हियर. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अबाउट. जो आपने बहुत ही खूबी से कहा मिस्टर पासी, दैट एवरीथिंग हैज अ पॉजिटिव टू इट, एंड वेरी नाइसली सेड दैट. और बोलिए. मैं अभी एक बात और भी कहना चाहूंगा कि जो मैंने महसूस भी किया है कि मैं अक्सर ये मंदिर में भी जाता हूँ जो हमारे एक फॉरेस्ट के अंदर है. वहाँ पंडित जी बैठे हुए तो उन्होंने मुझे एक गमला दे दिया छोटा सा. कहते ये आप घर ले जाओ. मैं कहा पंडित जी ये क्या? कहते हैं देखो इस बार ठंड बहुत बड़ी है और ये छोटा सा गमला आप इसमें लेना, इसमें ना काली तुलसी होती है. मैंने कहा काली तुलसी? तुलसी काली भी कभी होती है? कहते नहीं, ग्रे भी होती है, येलो भी होती है, 5 तरह की तुलसी होती है. तो मैं कहा विच वन इज दिस? कहते ये ग्रे है. मैंने कभी नहीं सोचा था तुलसी भी इतनी होती है. एनीवे, मैंने उसको अपने घर में लाया, दूसरे गमले में उसको लगा दिया, तो मैं देखता रही है कितने दिन के अंदर ग्रो करेगी. आप माने वो 30 दिन के अंदर 3 फीट तक आ गई. मुझे पता ही नहीं चला कि 30 दिन कैसे निकले. मैं उसको कभी गुड़ाई कर देता था, कभी थोड़ा सा पानी डाल देता था. दोपहर में अगर गर्मी थी तो ठीक है इसको और पानी डाल दे. सो दिस इज हाउ वी सी. ये 40 दिन का भी मुझे लगता है कि हमें पता नहीं चला. कई लोगों को स्ट्रेस है और कई, जैसे कल हमने ऐसा माहौल भी देखा है, उनको अपनी स्ट्रेस है, अलग अलग तरह की अपनी अपनी स्ट्रेस है. तो हमें पॉजिटिव होके ही चलना है
और यही हमारी अब फ्यूचर की लाइफ है आगे की। थैंक यू on. सर, थैंक यू Thank वेरी मच थैंक सर। देखिए आपने नेचर की बात की सर, जलंधर से धौलाधार की पहाड़ियां दिख रही हैं और यू। बिल्कुल। सहारनपुर बिल्कुल। उत्तराखंड की पहाड़ियां दिख रही हैं सर। और मछलियां दिख Exactly. रही हैं पानी में हर जगह। तो इराजी, शुड वी मूव ऑन टू अदर Yes, yes. पैनलिस्ट और विल कंटिन्यू? I'll continue. We'll take this up again in the end. ओके, राइट ओके। So जैसे इन्होंने बहुत ही खूबी से कहा that सबसे पहली बात तो एज अ डॉक्टर जो मुझे खुशी हुई है, लोग हाइजीन को कुछ मायने देने लगे हैं। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है सैडली हमारे देश में, सिखाया नहीं जाता है या इनकलकेट नहीं किया जाता है, या कुछ कमियां हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है that things like hand washing now that they're becoming a must is a wonderful thing which I feel only this adversity could have taught us. No amount of schooling, no amount of forcing could have taught, but ये हमें बहुत ही खूबी से सिखाया गया है। मास्क पहनना, मुंह कवर करना, आई ऑफ्टन फाइंड दैट हमारे देश में बहुत ही पास पास आके लोग खड़े हो जाते हैं, इतनी जगह है पीछे बट फिर भी कोई मेरी जगह ना ले ले इसलिए लाइन काट के आगे ना आ जाए, so we make sure we stick to each other at airports, at malls or wherever we are. So that has reduced, which is a great positivity in the pandemic. जैसे इन्होंने कहा सोचने का वक्त मिला है। I mean, कभी वक्त ही नहीं होता था, जब वक्त मिलेगा तो ये करेंगे, वक्त मिलेगा तो वो करेंगे, something we always said. Finally हमको वक्त मिला है। The nature has found time to hit pause and heal itself. तो हम देख सकते हैं कि हम लोग कितना अत्याचार करते हैं नेचर के ऊपर, that finally nature is healing. We are giving mother nature a moment of rest and peace. I would say technology is something which we have all learned in this time. Zoom के कुछ ऐसे features थे जो मुझे भी नहीं आते थे, to be very honest. My mother is taking classes on Zoom, which I'm so happy and proud of. Initially, she found it a little difficult, but now she's got the hang of it. I think टेक्नोलॉजी से जुड़ जाना सोशल डिस्टेंसिंग के टाइम पे, और टेक्नोलॉजी सीखना या कोई नई स्किल सीखना इज समथिंग ग्रेट विच ओनली दिस पैंडेमिक कुड हैव डन टू अस। सॉरी, ये फोटो मैंने नहीं डाली है, मेरे हस्बैंड ने डाली है। क्लियरली थोड़े से घर के डायनामिक्स शिफ्ट हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारे देश में। घर में काम बदला, थोड़ा डिवाइड इन ये हो जा रहा है, पीपल आर हेल्पिंग। आज मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, विच इज ग्रेट, so I'm in an extra positive mood, as you can see. Roles are shifting, men of the house are helping. मेरे को मिस रावत ने बोला कल, मैंने कहा 12 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई होप लोगों को भूख ना लग जाए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बोला, बोले नहीं नहीं आप फिक्र मत करिए, हम सब झाड़ू पोछा मार के 12 बजे तक सामने बैठेंगे, so we will make sure that we take care of household chores and sit in front. We've also learned how to live with limited or no house help, which is kudos to us. Things we thought we really need aren't the things which were indispensable after all. Family time. लोग तंबोला खेल रहे हैं बालकनी में, हाउ इंटरेस्टिंग। मुझे परसों आया पेटीएम में पैसे भेजिए, हम ऑनलाइन हाउसी खेलेंगे, एंड आई वाज इम्प्रेस्ड। आई वुड से लोगों की इनोवेशन निकल रही है, घर में टाइम स्पेंड करने का। एक जो फैमिली घरों में एक होम थिएटर होता है ज्यादातर जो कभी यूज नहीं होता है, या एक रूम होता है जहाँ सब टीवी देखते थे। आजकल हम सब अपना अपना टीवी पकड़ के बैठे होते हैं अपने अपने रूम में, मगर ये ऐसा टाइम हुआ है वेयर वी आर फोर्स्ड टू सिट टुगेदर एंड स्पेंड टाइम, एंड दैट इज आई थिंक जस्ट ग्रेट। एंड जैसे उन्होंने बोला पॉज एक मिल गया है हम सबको, अ फोर्स्ड पॉज बट अ गुड पॉज फॉर दैट मैटर, फॉर इनर रिफ्लेक्शन। व्हाट इज दिस टाइम? ऐसा टाइम भी हो सकता था क्या? अनइमेजिनेबल, and we are finally experiencing it. And these are the positives of this pandemic. You can't ignore it. In fact, if anybody feels very restless, I always ask them, what positive has the situation done to you and your loved ones? Has it brought you closer to someone? Did you have a first? So I told one of my clients to write all her first during the pandemic. She very beautifully wrote कि मैंने कभी सुबह उठ के इतनी जल्दी सूरज नहीं देखा था. I used to wake up according to my child's school timing, which used to be fairly little later. But अब मैं अपने लिए कुछ वक्त निकाल रही हूँ. मैंने कभी बाथरूम नहीं साफ किया था. That was her first, and I was very very impressed that ऐसा first ढूंढने में भी positivity कोई develop कर सकता है. अगर आपकी growth हुई है, जैसे आपके तुलसी के प्लांट की growth हुई है, अगर आपकी growth हुई है, that is all that matters. That is where the positive light is there in our lives, and that we constantly need to seek out for and look out for. Because remember, positivity is there in the darkest of the situations, and darkness is nothing but the absence of light.
So this is something which I swear by. I always tell people. And किसी भी situation में हमें थोड़ा सा positive ढूंढने की कोशिश करना, एक अंदर से आदत बनानी पड़ती है. We call it learned optimism. मतलब ऑप्टिमिस्टिक कुछ लोग अंदर से होते हैं, जैसे उन्होंने आंसर दिया होगा आई एम श्योर पोल में, मगर कुछ लोग को कोशिश करनी पड़ती है ढूंढने के लिए. एंड दैट इज व्हाट दिस इज अबाउट. इनफैक्ट 89% लोगों ने कहा है, मनीष जी ने मुझे भेजा है, कि दे थिंक दैट दे आर एन ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव पर्सन. ग्रेट. जो चंद लोग हैं जिनको लगता है वो नहीं है, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस यू कैन कम अबाउट टू द रियलाइजेशन दैट आप में भी बहुत पॉजिटिव है, आपने बस देखा नहीं था. बट आई हैव a point that being optimist is great, but being optimistic doesn't mean that you stop being a realist. Reality face करनी पड़ती है, चाहे आप कितने भी positive हो. Clearly, some people can choose not to worry about anything, like Mr. Trump, but people like you and I need to worry about things. And yes, we worry. And yes, that causes a certain amount of stress. That's another thing I want to talk about. मैंने पूछा, आर यू स्ट्रेस्ड ओवर द कोविड-19 सिचुएशन? 43% सॉरी, कोरोना वायरस सिचुएशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? इसमें 43% लोगों ने कहा कि ये पॉजिटिव है एंड 57% लोगों ने कहा कि ये नेगेटिव है. आई होप जो भी हमने डिस्कशन की उसके बाद आपका थोड़ा सा पोल इधर उधर चेंज हुआ होगा. पॉजिटिव वाले पॉजिटिव ही रहे होंगे, पर नेगेटिव वाले होपफुली थोड़ा पॉजिटिव की तरफ चले गए होंगे. नाउ when I asked you, are you stressed over the present situation? 52% people were honest and said, yes, I am stressed, Dr. Saiba. 48% are too nice to me and said, nahi, I'm not stressed. मैं विश्वास नहीं करती. I believe 100% of us are stressed over this situation. It is natural. It is normal. It is real. It's okay to be stressed. हम अक्सर stress को एक automatically positivity का opposite मान लेते हैं. Stress मतलब negative. I'm here to break that belief. Stress मतलब negative, ऐसा कुछ नहीं है. In fact, there can be positivity in that stress as well. कुछ challenges जो हम लोग face कर रहे हैं, मैं फिर से panelists को थोड़ा include करना चाहूंगी. ये कुछ challenges मेरे mindset से आए आप लोगों की तरफ, especially relevant to the crowd which I'm talking to today. वर्क फ्रॉम होम एक बड़ा चैलेंज बन गया है. रावत जी तो आज ऑफिस में बैठे हैं, वो तो वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहे हैं. बट मोस्ट ऑफ अस आर लर्निंग हाउ टू वर्क फ्रॉम होम. मी एज अ डॉक्टर टेकिंग माय एंटायर प्रैक्टिस एट होम हैज बीन नथिंग बट ग्रेट, बट इट हैज बीन इफेक्टिवली स्ट्रेसफुल बिकॉज कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे प्रिस्क्रिप्शन जाएगी, कैसे समझाना, कैसे टाइमिंग करना, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है. जॉब इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है. बहुत सारे कारीगर आप लोगों के यहाँ पे होंगे, फैक्ट्रीज बंद हुई हैं जिनकी ऑब्वियसली लाइफ काफी चेंज हो गई है. बच्चों की एजुकेशन एक डिफरेंट मोड ले ली है. दे आर स्टडीइंग इन फ्रंट ऑफ द डिवाइसेस. मिस्टर कुमार ने हाथ उठाया है. आई कैन सी दैट ही इज रेज्ड अ हैंड. वी वुड लाइक टू टेक हिज ओपिनियन लेटर. एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी आ गई है, एक चिंता आ गई है. ऑफ कोर्स दैट इज रेलेवेंट. एक हेल्थ को लेके चिंता, अगर मुझे हो जाए तो, अगर मुझे कल को हो जाए या मेरे किसी लव्ड वन को हो जाए तब मैं क्या करूं. फैमिली के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पास में रहेंगे, बर्तन रहेंगे तो झगड़ेंगे, ऑफ कोर्स वो भी एक सिचुएशन बनती आ रही है. अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दैट दे आर लिटिल मोर स्ट्रेस्ड स्टेइंग एट होम. जस्ट द आइडिया ऑफ स्टेइंग एट होम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉम्प्रिहेंड. एंड व्हाट नेक्स्ट? व्हेन विल दिस नॉर्मलाइज? दैट इज अनदर स्ट्रेसफुल क्वेश्चन व्हिच पीपल have in their minds. Mr. Rawat, please किसी पैनलिस्ट से पूछिए कि कुछ और पॉइंट्स हैं जो वो बताएंगे जो उनके लिए चैलेंजेस हैं जो मैंने नहीं कवर किए. मैं I would request now Mr. Praladka to briefly touch upon what Dr. Era has said so far. कोई challenges sir? How do you look at positivity in these corona times? Mr. Praladka. क्या चैलेंजेस मैंने बिल्कुल नहीं कवर किए. मैं जरूर सुनना चाहूंगी कि आपके तरफ से जो चैलेंजेस मैंने ओवरलुक कर दिए, बिकॉज अगेन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर आई नीड टू हियर फ्रॉम यू दैट व्हाट इज आल्सो रेलेवेंट टू यू. सबसे अच्छी बात तो ये हुई कि हर आदमी किफायत में रहना सीख गया है, अपने आप में एक अजीब सी डिसिप्लिन लेके आ रहा है. और डू इट योरसेल्फ. मैसेज इज वेरी वेरी क्लियर. बच्चों के साथ ज्यादा टाइम देना बहुत जरूरी है, जो हम लोग हमारी व्यस्त जिंदगी में समझ नहीं पाते थे.
इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ा लेकिन चैलेंज है, डिजिटल वर्ल्ड से क्लोजनेस भी है, एडवांटेज भी है, निगेटिविटी भी है, बिकॉज many of the family members have become used to games and they have become addict and it is a very big challenge। and उसके बारे में आप बताओ कि उनको अपने कैसे समझा सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं। जरूर, वो आगे हम कवर करेंगे, बिल्कुल। मगर कोई और चैलेंज जो आपको लगा है पर्सनली या आपकी फैमिली जो फेस कर रही है, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं या हम लोग जिन शहरों में रहते हैं, एटलीस्ट हम लोग को ग्रोसरीज और ये सब चीज मिल पाई है। कुछ लोगों के शहरों में वो भी प्रॉब्लम थी एट सम पॉइंट। नाउ थिंग्स आर स्टार्टिंग टू नॉर्मलाइज ऑफ कोर्स, बट सर्टेन थिंग्स आर सो चैलेंजिंग इन आवर ओन माइंड्स। अगर किसी के फैमिली में किसी को कोविड पॉजिटिव निकला है, दैट इज अनदर इमोशनल टर्मोइल आई वुड से। आई नो डॉक्टर्स पर्सनली जिनके घर में लोगों को हुआ है और उन डॉक्टर्स को नहीं हुआ है, एंड देव लिटरली कम एंड टोल्ड मी आई फील सो गिल्टी। उनकी कुछ सेशंस हमने काउंसलिंग के सिर्फ इसी पे किए हैं कि एज अ डॉक्टर आप क्यों गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप घर ले गए थे और आपने घर के किसी मेंबर को दे दिए और आपको खुद नहीं हुआ। सो ये कुछ ऐसे से चैलेंजेस है जो हर इंडस्ट्री के लिए अलग होते हैं। आप लोगों की इंडस्ट्री ने कितने करोड़ों का लॉस सफर किया, मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे। दैट इज अनदर थिंग आई फील। जो कारीगर हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना चाहिए कि कितना स्ट्रेसफुल है ये माहौल। नहीं, मेरा सोचना है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स आने वाला है, that will impact the labor intensive industry very much. Absolutely. Secondly, the people जो घर चले जाएंगे, सबसे पहले वो अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे, परिवार के बारे में सोचेंगे। बहुत सारे लोग काम पे वापस आना कम पसंद करेंगे, कम में जीना पसंद करेंगे। एक है, मैं जिस एरिया में रहता हूँ, ये कलकत्ते की आज की तारीख में वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है जी। लेकिन हम लोग जो सीनियर्स इस लोकेलिटी में है, पुलिस के साथ काम करके चेष्टा कर रहे हैं कि फियर आदमी में ज्यादा न बढ़े। मेन इशू है जो उसका चेकअप करना है, कंट्रोल करना है, दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, बट द अनदर थिंग इज फियर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, मेरी लोकेलिटी में 3 बिल्डिंगें सील हो गई हैं जी। अब वो सील होने के बाद में सबसे बड़ी चिंता है कि पूरी बिल्डिंग में 60 फैमिलीज फियर साइको में मरी जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग एक दूसरे को छूत करने लगे, अरे नहीं नहीं तुम्हें कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हम डिस्क्रिमिनेट वायरस के अगेंस्ट नहीं, हम लोगों की तरफ डिस्क्रिमिनेट करने लगे हैं। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये जो एक बहुत बड़ा सोशल चैलेंज है, इसको अपने कैसे एड्रेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बोल सको तो अच्छा है। तो ऐसे वेबिनार्स क्रिएट करना बहुत ही अच्छी बात रहेगी, अगर आपकी तरह और भी लोग अवेयर होंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, कैसे हम पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। So I am presently in fact holding a webinar almost every second day for some or the other organization, और मुझे लगता है कि बहुत ही important है मोरल बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए। गवर्नमेंट फूल बरसा रही है, हम लोग तालियां बजा रहे हैं, ये सारी चीजें चाहे हमें कभी थोड़ी ट्रिवियल लगे, but these are actually very helpful in increasing positivity and realistically boosting the morale of the people who are working during this time. If with your permission, can I move ahead? हम आगे चलते हैं। Yes, go ahead. एक हेल्पलेस फीलिंग आने लगी है। मैं जितने लोगों से बात करती हूँ, वो जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में क्या होगा, उसकी वजह से जो स्ट्रेस है, दैट इज कॉजिंग अ फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। करना चाहते हैं कुछ, मगर क्या करें, दैट इज द सिचुएशन। खोलना चाहते हैं फैक्ट्री, क्या करें। मैं जाके पेशेंट्स को देखना चाहती हूँ इन पर्सन, मगर क्या करें। ये हेल्पलेसनेस हम सबके अंदर एक तैयार हो गई है, विच अगेन इज फाइन, बिकॉज इस हेल्पलेसनेस से भी हम कुछ सीख रहे हैं। जो स्ट्रेस है वो एक गुब्बारे की तरह है। वी आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड। एवरी टाइम वी ब्रीथ आउट, वी पुट मोर एंड मोर एयर इनटू दिस रेड बलून। रेड क्योंकि डेंजर का साइन होता है, तो इसलिए मैं आपको रेड बलून इमेजिन करने को बोल रही हूँ। Each time you put more stress into the balloon only becomes bigger. एक स्वीट पॉइंट होता है जहां पे वो बलून बहुत अच्छा सा गोल भरा होता है, एंड इट कैन फ्लोट एंड वी कैन प्ले अराउंड विद इट। बट बियॉन्ड दैट पॉइंट, अगर हम उस बलून में हवा भरते ही चले जाएं, स्ट्रेस डालते ही चले जाएं, एंड उसमें से हवा कभी भी ना निकालें, that's when the balloon will pop. In fact, that's when the lid will blow. In fact, कुकर फट जाएगा। So मेरी ऐसी राय है कि स्ट्रेस नॉर्मल है, मगर स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही जरूरी है। अगेन, जो हमें
इस प्रेजेंट कोविड सिचुएशन ने, इस वायरस ने एक गिफ्ट दिया है टू पॉज एंड मैनेज थिंग्स and not to constantly work on an autopilot, something that we do every day. बस चले जा रही है जिंदगी, उठे, नहाए धोए, काम पे गए, वापस आए. It's almost like 24/7 we are like a machine working. But finally stress release करने का कुछ तरीका हमको मिला है. लाइफ में बैलेंस बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्हाट नेक्स्ट. ये जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जैसे उन्होंने कहा कि अभी आप कितना कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा बैलेंस बनाइए. डोंट फॉरगेट ऑल द लर्निंग यू हैव डन. इट टुक दिस वायरस टू मेक यू अनलर्न योर बिजीनेस एंड लर्न पॉजिटिव थिंग्स लाइक gardening, like spending time with the family, like taking care of your health, like some people have left in the chat that they are exercising, eating healthy. Please no, don't unlearn that. एक स्ट्राइक बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है. बहुत ही डेलिकेट बैलेंस बनता है लाइफ में, जिसमें बिजी एंड प्रोडक्टिव भी रहना है, मगर खुद के ऊपर फोकस, स्ट्रेस को मैनेज करना भी बहुत जरूरी है. और ये संभव है, ये संभव नहीं है. बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, इनफैक्ट मोस्ट सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में बैलेंस स्ट्राइव करने की कोशिश करते हैं. स्ट्रेस, जैसे मैंने कहा, गुड भी है, बैड भी है एंड अगली. एवरीथिंग हैज अ गुड, बैड एंड अगली साइड टू इट. आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्ट्रेस in limited amounts can actually be good for you. So वो जो आपने बलून में हवा भरी है, it's actually a good thing to sometimes be slightly stressed out. Like right now we're all thinking of innovative ways to take the new challenges on. अब क्या करें इसके बाद? So it's at least putting our brains into a new thinking pattern. हम नई सोच ढूंढ रहे हैं, हम नए तरीके ढूंढ रहे हैं. कुछ लोग गलत बुद्धि की तरफ ढूंढ रहे हैं उसको, बट एटलीस्ट हमारा ब्रेन एक नई दिशा में चल रहा है. स्ट्रेस गुड भी है, बैड भी है. आपको एक बीच का स्वीट स्पॉट ढूंढना है. मतलब बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो हम एकदम बोर्ड हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग हैं घर पे बैठ के क्या करें, अब ये भी कर लिए, वो भी कर लिए, नाउ व्हाट नेक्स्ट. उसके बाद जब थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, 3.0 स्टार्ट हुआ है, उसके बाद होपफुली इसके बाद खत्म हो जाए, मगर तब हमें लगता है अब हमें वापस अपने काम की तरफ ध्यान देना है. वापस we have to achieve certain things. There's a very good point where we feel productive, but when we push ourselves over the edge, you start freaking out, you start crashing and burning, and the problem with that is इससे बहुत सारे physical problems होते हैं, heart problems होते हैं, diabetes, hypertension, mental health problems, you name it. जो भी बीमारी से हम बचना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिविटी से अच्छे रहना चाहते हैं, ये स्ट्रेस हमें उनकी तरफ खींचा ले जाता है. सो वी हैव टू नो वेयर टू से नो, वेयर टू स्टॉप. Once you're back to office, like Mr. Rawat is, still there needs to be a sense of balance in your life when you go back home. So one other question which I get asked out a lot is, ठीक है, स्ट्रेस है, ऑब्वियसली स्ट्रेस तो आएगा जाएगा, आप कह रहे हैं एक स्वीट स्पॉट ढूंढूं, वो कैसे ढूंढूं? व्हाट टू स्ट्रेस अबाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बहुत ही सिंपल रूल मैं बताती हूँ लोगों को लाइफ में. कुछ चीजें आपके वश में हैं, आपके कंट्रोल में हैं, कुछ चीजें आपके इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, और कुछ चीजें आपके कंसर्न और आपके इन्फ्लुएंस के जस्ट बाहर हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. आपके कंट्रोल में है प्रेजेंट सिचुएशन में हाथ धोना, बार बार बाहर जाने के टाइम पे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करना. आपके इन्फ्लुएंस के अंडर है, हो सकता है अगर अगला इंसान आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर दिया, या यू मूव अवे. If your child is not washing hands, you can possibly influence them and tell them, why don't you wash your hands? See, I am leading by example. But then future में क्या होगा are things which are not under your control. Vaccine कब निकलेगी? I'm sorry. Worrying about these things are not under your control. Same way, when you bounce back in life, एक real life में भी जब भी आप confused हो कि मेरे को इतना stress क्यों हो रहा है, ask yourself, क्या ये मेरे control में है? क्या यह मेरे कंट्रोल के बाहर है? थिंग्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल, कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, किसी और को मिल गया हमको नहीं मिला, आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल. एंड दैट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डिसाइड व्हाट टू स्ट्रेस अबाउट, बिकॉज स्ट्रेसिंग इज फाइन, like I just explained to you all. So positivity
यूज की जा सकती है स्ट्रेस को कम करने के लिए। एंड इसमें मैं बहुत ही छोटी मोटी टिप्स बताऊंगी आपको जो आप ऑब्वियसली रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकें, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ जो चीज मैं खुद ना अप्लाई कर सकूँ मैं कभी भी किसी और को नहीं बताऊंगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको रोज 2 घंटा मेडिटेट करना है, मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज विद द बिजी स्केड्यूल दैट आई हैव आई कैन मेडिटेट फॉर 5 to 7 minutes every day, but I cannot meditate for 2 hours every day. So my tips are effectively going to be things which are extremely practical, extremely doable. So let's start. मेरे हिसाब से पॉजिटिविटी एक बिल्डिंग की तरह है जिसकी 4 मेन नींव हैं, 4 मेन पिलर्स हैं। फर्स्ट इज योर कॉग्निटिव पॉजिटिविटी, मीनिंग थिंकिंग पॉजिटिवली। सेकंड इज योर सेंसरी पॉजिटिविटी, मतलब जो हमारी 5 सेंसेस हैं। नेक्स्ट इज योर फिजिकल पॉजिटिविटी एंड द लास्ट इज योर इमोशनल पॉजिटिविटी। इनफैक्ट इमोशनल पॉजिटिविटी शुड नॉट बी द लास्ट, इट शुड बी द फर्स्ट, बट वील टॉक अबाउट इट। कॉग्निटिव पॉजिटिविटी जो हम हमेशा कहते हैं थिंक हैप्पी थॉट्स और अच्छा होगा, हर समय हैप्पी थॉट्स सोचना एक तो संभव नहीं है, मगर फिर भी थिंक हैप्पी थॉट्स एंड यू विल बी मोर पॉजिटिव। बट मेरी राय में मोर देन जस्ट थिंकिंग हैप्पी थॉट्स, थिंक लेसर ऑफ द लेस हैप्पी थॉट्स, मतलब नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव ओवरलोड को थोड़ा सा कम करिए। कैसे कम करिए? हर समय ब्रेकिंग न्यूज प्लीज मत सुनिए। There was a gentleman जिनके सेशन में वो मुझे बोले, मैडम मैं दिन में अगर 12-15 घंटे जागा होता हूँ तो हर घंटे मेरा टीवी ऑन रहता है, आई एम अपडेटेड विद न्यूज। इनफैक्ट आई थिंक वन ऑफ द पोल्स शुड हैव बीन दैट आप में से कितने लोग 24 घंटा न्यूज देखते हैं लिटरली। सो न्यूज एक ऐसा पार्ट बन गया है। ऑफ कोर्स अप टू डेट रहना जरूरी है, ऑफ कोर्स लाइफ में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए, मगर 24 घंटा न्यूज की एक बम्बार्डमेंट कुछ नहीं मगर नेगेटिविटी ज्यादातर लाती है हमारी लाइफ में। कितनी डेथ्स हुई हैं ये ज्यादा फ्लैश होता है, कितने लोग ठीक हुए हैं ये कभी फ्लैश बहुत कम होता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट, रिमूव द कॉग्निटिव पॉजिटिविटी डिप्लीटर्स। मैं कहती हूँ ये डीमंस हैं जो बेसिकली आपकी पॉजिटिविटी को एकदम खींच के ले जाते हैं। If the first thing that you do in the morning is open your cell phone and read the news or go for that WhatsApp message to get that maybe fake news, please stop that. That is a great way to increase your positive thinking. जो पहला विचार है दिन का सुबह से उठते से हमें जैसे सिखाया जाता है भगवान को याद करो, मगर हम लोग भगवान को याद करते करते थोड़ा सा इनको भी याद करते हैं, मोबाइल फोन को। So थोड़ा सा पॉजिटिव होने के लिए कुछ नेगेटिव्स को काटना बहुत जरूरी है। आई थिंक व्हाट्सएप, लोग एक ही रूम में बैठ के फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करती रहती है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। अवॉइड दीज थिंग्स। एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन बनाना बहुत ही जरूरी है कॉग्निटिव पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। कभी कभी सभी अगर मोबाइल पे लगे हुए हैं, सभी बोलेंगे नहीं मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम ले रहा हूँ। दिन में 1 घंटा या चलिए आधा घंटा पूरी फैमिली डिसाइड कर सकती है जब हम अपना मोबाइल फोन साइड रखें, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन। I know 10-year-olds who have cell phones. I know 6-year-olds who have cell phones. So let's all decide that cognitive positivity बढ़ाने के लिए कुछ negatives हमको काटने पड़ेंगे। So gadgets से थोड़ा सा distance maintain करिए, social distancing के साथ साथ digital distancing maintain करिए। मैं ये firmly believe करती हूँ because digital distancing में हमारा एक अपना mind कैसे चलता है बहुत जरूरी है होता है, otherwise we're constantly dependent on just technology for everything. Another negative source is negative people. I feel सबकी life में we all know somebody who's we say a negative person. So for some people we are that negative person. But negative people need to be at least pointed out in your head, and you try to maintain, if not a physical distance, but at least an emotional distance. अब ये बहुत ही difficult हो जाता है कुछ लोगों के लिए जब मुझे कहते हैं अरे मेरे घर में ही बहुत negative लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे कैसे distance maintain करूं। तो आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि इन लोगों से आपका कम्युनिकेशन जो है कैसे लिमिटेड रहे और इनकी बातों से आपने ज्यादा इफेक्ट नहीं होना और उनमें ओवर इन्वॉल्व नहीं होना है। ये बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपने माइंड को शांत रख सकें, अपनी पॉजिटिविटी बरकरार रख सकें। सो अंडरस्टैंड विच फ्रेंड इज नॉट गुड, एंड फिर भी आप दोस्ती निभा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे चला के रखनी है या फायदा हो रहा है। Please understand who is sucking your positive energy from you. It is very important at any stage of life for that matter.
कुछ और तरीके हैं जिससे आप अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं थिंकिंग वाइज। जैसे उन्होंने कहा, बच्चों के साथ खेलना या गेम्स खेलना, बोर्ड गेम्स खेलना। आई थिंक सबके बोर्ड गेम्स, लूडो बाहर आ गई है, विच इज अ ग्रेट थिंग। एक और रूल जो मैं फॉलो करती हूँ लाइफ में और सबको सजेस्ट करती हूँ बहुत हाईली, इज क्रिएट वर्सेस कंज्यूम। इसका मतलब बहुत सिंपल है। हम लोग सब YouTube पे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, हम लोग बहुत सारे YouTube पे डू इट योरसेल्फ वीडियोस देखते हैं, हम लोग खाना पकाने की वीडियोस देखते हैं, कितना कुछ देखते हैं, मगर उनमें से कितनी कुछ चीजें क्रिएट करते हैं। द प्रॉब्लम इज वी आर ऑलवेज कंज्यूमिंग। हम हमेशा ले रहे हैं अंदर और इन्फॉर्मेशन, मगर हम उसका कुछ फायदा नहीं उठा रहे हैं। जब तक कि अगर आप इस वेबिनार से कुछ फायदा उठा के अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट ना करें तो सॉरी, आपने 1.5 घंटा वेस्ट किया। और सिमिलरली अगर आपने कोई आर्टिकल पढ़ा और उसको इन्फॉर्मेशन को अगर आपने यूज नहीं किया या कोई रेसिपी सीखी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इट्स अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ योर एफर्ट एंड इट्स नथिंग बट डिप्लीटिंग योर पॉजिटिविटी. Also, if you have negative thoughts, which we all have, please don't run away from them. उनको बुरा मत कहिए, उनको बिठाइए और बोलिए ठीक है, अब बुरे ख्याल हैं, हो सकता है मेरे में थोड़ी सी नेगेटिविटी है, इसको एनालाइज करिए, एक्नॉलेज करिए। थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल गलत नहीं होती है। इनफैक्ट थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग के बाद हम उसके ऊपर वर्क करके उसको पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा 24 घंटे सिर्फ पॉजिटिव सोच सकता है। नेक्स्ट इज योर सेंसरी पॉजिटिविटी। सेंसरी पॉजिटिविटी एक ऐसा कंसेप्ट है जिन पे मैं बहुत लोगों के साथ काम करती हूँ। इसका सिंपली मीनिंग ये है कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, मुंह, स्किन एंड सुनना, these 5 senses are sadly always getting overloaded क्योंकि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं। एक तरफ कंप्यूटर ऑन है, एक तरफ फोन ऑन है, एक तरफ साइड पे कुछ और चल रहा है। आई थिंक सबके घर में ऐसा चल रहा होता है। सो वी आर कॉन्स्टेंटली बॉम्बार्डेड और साथ में हम खाना खा रहे होते हैं। सो इमेजिन यू आर ईटिंग अ मील बट you at the end of it don't even know what you ate or how much you ate. So people end up overeating. People may be exercising, गए हैं सैर के लिए, मगर साथ साथ में मोबाइल चल रहा है। We are not even aware that हमने कितने किलोमीटर चला. We are not letting it affect our body. That positivity from that actual activity isn't happening. There is something called mindfulness, which I constantly tell people that they should try to practice. माइंडफुलनेस का सिंपल मीनिंग ये है, आपकी बॉडी अगर यहाँ पे है, कोशिश करिए योर माइंड इज ऑल्सो हियर. इट्स नॉट इन द पास्ट, इट्स नॉट इन द प्रेजेंट. मीनिंग ये प्रेजेंटेशन के दौरान मैं ये नहीं सोच रही हूँ साथ साथ में कि इसके बाद मैं खाऊंगी क्या या मैं बनाऊंगी क्या. एंड सिमिलरली अगर मैं खा रही हूँ तो मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन में बोलूंगी क्या. सो बीइंग माइंडफुल इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल. यू कैन ट्राई माइंडफुल वॉकिंग. अगर आप सैर करने गए हैं, प्लीज अपनी डिवाइस घर पे छोड़िए. प्लीज अभी तो बाहर मत जाइए. अगर घर में ही सैर कर रहे हैं तो प्लीज चप्पल खोल के अगर चल रहे हैं, फील करिए ग्राउंड कैसा महसूस होता है. ट्राई टू फोकस ऑन हाउ यू आर स्विंगिंग योर हैंड्स. ट्राई टू फोकस ऑन योर ब्रीदिंग पैटर्न व्हेन यू आर वॉकिंग. कभी वो बढ़ रही है, कभी वो कम हो रही है. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए बोलिए. मैं नहीं कहती वो नहीं आएंगे, मगर फोकस योर सेंसेस ऑन द टास्क. If you're eating, आप देखिएगा एक छोटा बच्चा जब पहली बारी कुछ खाता है, उसके फेस पे कितनी हंसी होती है. My daughter, she's extremely young. When she ate a mango the first time, it was almost as if she had found the biggest jackpot in her life because she enjoyed it with all her senses. थोड़ा messy किया, थोड़ा दबाया, थोड़ा खाया, थोड़ा सूंघा. That is what mindful eating is about. Sadly, हम लोग ऑटो पायलट पे खाते हैं, साथ में मोबाइल टीवी चलाते हैं या आपस में बात कर रहे होते हैं या माइंड कहीं और होता है. And that is extremely bad because we do not understand what have we done. So mindful meditation is something everybody can try their hands at. इसके लिए कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं लगती है. बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ आप कोशिश कर सकते हैं पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए. The last 2 pillars are physical and emotional positivity. अब मैं डॉक्टर हूं तो थोड़ा सा तो एक गोली खिलाऊंगी. तो गोली जो मैं खिलाना चाहती हूँ आपको वो है एक हार्मोन की गोली, जिसको हम पॉपुलरली बोलते हैं डोज. तो ये डोज है डोज हार्मोन की, विच इज डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन. ये 4 केमिकल्स अगर हमारे माइंड में बने रहें
सबके माइंड में होते हैं, आपके भी माइंड में है, मेरे माइंड में भी है, अगर ये बने रहें और एक नॉर्मल लेवल में रहें तो हम सब पॉजिटिव और हैप्पी रह सकते हैं। अब कैसे बढ़ाए जाएं? एक्सरसाइज बहुत ही बड़ी तरीका है। An average adult like you and me needs 150 minutes of exercise in a week. अब वो 150 मिनट आप चाहे 30 मिनट 5 बार करिए, चाहे 50 मिनट 3 बार करिए, जैसे भी करिए, मगर एक्सरसाइज ऐसी होनी चाहिए कि उसके एंड में आप थोड़ा सा हाँफ रहे हो या स्वेट कर रहे हो एंड यू हैव अ फील गुड फैक्टर. दैट फील गुड फैक्टर ऑटोमेटिकली मीन्स कि आपका एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन रिलीज हुए हैं, डोपामिन और बूस्ट हुआ है, एंड ऑक्सीटोसिन मतलब किसी और के साथ एक्सरसाइज करके अगर आप अपनी वाइफ के साथ वॉक पे चले गए या बच्चों के साथ थोड़ा सा आपने कुछ खेल लिया, दैट इज व्हाट ऑक्सीटोसिन डज टू आवर इमोशनल पॉजिटिविटी. So move and groove, especially while you're in the lockdown, but even after the lockdown, I please urge you to make exercising a part of your life. गाड़ी से आ रहे हैं, थोड़ा सा दूर उतर जाइए, लास्ट एक ब्लॉक थोड़ा सा चल के आ जाइए, लिफ्ट मत लीजिए, सीढ़ी लीजिए, आजकल तो वैसे भी लिफ्ट मत लीजिए, इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू नॉट टेक द लिफ्ट इन टुडेज टाइम. So these are small hacks which you must try to adopt for positivity. एक और बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी डोज है जो मैं सबको कहती हूँ, लो, ह्यूमर थेरेपी. जोर जोर से हंसना. कपिल शर्मा आई थिंक सबको ही हंसा देता है, और ये मेरे हस्बैंड ने कहा ये अच्छा जोक है, उनको बहुत हंसी आई ये जोक पढ़ के. क्लियरली एज हिज वाइफ मुझे ज्यादा हंसी नहीं आई, बट उनको बहुत हंसी आई कि मेरी बीवी बहुत साउंड एडवाइस देती है, ज्यादातर साउंड देती है, एडवाइस 1% देती है. सो जो भी आपको फनी लगे वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए. नेगेटिविटी, नेगेटिव न्यूज से निकल के थोड़ा सा पॉजिटिविटी और ह्यूमर की तरफ जाइए. क्या पॉजिटिविटी easy hai? Is it very easy to bring about positivity in your life? I would say yes and no. Yes, because where there is willingness, yes, you can try. No, because you cannot be always positive, but you can always try to be more positive, of course. My personal favorite positivity practice, this is something जो मुझे बहुत पेशेंट्स आके पूछ के जाते हैं, बोलते हैं मैडम आप कैसे खुद को पॉजिटिव रखते हैं, दिन भर इतनी नेगेटिविटी सुनते हैं, लोगों का दुखड़ा सुनते हैं, लोग इतनी कुछ बताते हैं आपको. तो पहली बात तो ये कि अपनी पॉजिटिव प्रैक्टिस मैं बरकरार रखती हूँ. ऑफ कोर्स देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज, बट डिस्पाइट दैट द वन थिंग आई ट्राई टू ऑलवेज डू इज प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाई थी, बट अमेरिकन्स ने बड़े अच्छे से पैकेज करके इसको ग्रैटिट्यूड का नाम दे दिया है. बड़े बुजुर्ग कहते थे भगवान को सुबह उठ के थैंक यू बोलो और रात को सोने से पहले थैंक यू बोलो. तो ऐसे ही दिन में क्या अच्छा हुआ है उस पर फोकस करना, रादर देन क्या नहीं मिला. तो अगर मैं आप सबको बोलूं कि आज सुबह से आप लोगों की लाइफ में कोई एक अच्छी चीज हुई है, इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग, आई वुड लव टू नो लेटर इन Q&As प्लीज. Any one small thing. My favorite today so far has been you all. Thank you so much for being such a great audience. Stay positive, but not COVID positive. Please stay at home. Please be safe. The final piece of positivity that I say is practice regularly, focus on positive thoughts, physical exercise, patience, and please make these positivity hacks your own. हो सकता है आपको मेरा नहीं कुछ और तरीका पॉजिटिव लगे. It's absolutely fine as long as you feel good. Finally, life is कभी खुशी कभी गम. I think सबकी लाइफ ही ऐसी है, पर याद रखिए कल हो ना हो. क्लियरली रिसेंटली हमने देखा है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लोग चले गए हैं, कल हो ना हो हम सबके लिए वैलिड है. तो जब तक है जहान, we should all stay safe, stay optimistic and positive, and please stay happy. Thank you so much.